Hello students, it's Ranveer Singh is here. Today I will summarize the chapter Bishop's Candlestick by Norman MacDonald. Is a well-known play. The drama The Bishop's Candlestick has three main themes: love, kindness and redemption. इसके तीन पहलू हैं, तीन थीम्स हैं। एक लव का है, दूसरा काइंडनेस का है और तीसरा जो है पाप मुक्ति का, रिडेम्पशन। नॉर्मन मैकनल प्ले द Bishop's Candlesticks is based on a scene from Victor Hugo's play Les Miserables. It's about how a small act of kindness can transform a condemned criminal into a man. ये जो प्ले है एक स्मॉल एक्ट है, ठीक है, जिसमें एक क्रिमिनल जो है कैसे बदल जाता है एक सही आदमी के रूप में, कैसे उसका बदलाव हो जाता है। और बस वो कुछ और नहीं, किसी आदमी का काइंडनेस था, बैशप का काइंडनेस था। ए कॉन्विक्ट breaks into a Bishop's house and demands food, endangering the Bishop's life in the process. The Bishops not only provides him with food and shelter, but also his sympathy. एक आदमी जो है ना, एक अपराधी Bishops के घर में घुस जाता है और वह जो है उससे फूड का डिमांड करता है, लेकिन Bishops ने उसको फूड के बदले रहने के लिए भी दिया और साथ में उसको सहानुभूति, सिंपैथी भी दिया। Instead of being appreciative, the convict steal the Bishop's chest and treasures and candlestick. उसका सारा चीज वहां से वो चुरा लिया। A sergeant quickly apprehends him and brings him before the Bishops. और फिर जो एक सिपाही उस Bishop के जो अपराधी थे, जो अपराध किया था, उसको पकड़ के Bishops के आगे लाते हैं। और the Bishops on the other hand claim to have given the inmate the candlestick as a present and demand that he be released. और वो उसको क्या बता देता है कि उसी ने उसको गिफ्ट के तौर पे दिया है, या फिर वो मेरा दोस्त है और मैंने इसको गिफ्ट के तौर पे दिया है। This small gestures restore the convict trust in mankind and persuaded him to resume like a moral life. ये जो है मानवता पे उसको भरोसा हो जाता है फिर, और वो जो है अपना जीवन बदल लेता है। The play depicts how criminals are not born, but rather become criminals as a result of their surroundings. Criminals जो है कोई पैदा नहीं होते हैं, अपने आस पड़ोस कुछ कारनामे की वजह से वह जो है क्रिमिनल बनते हैं। Norman MacDonald was an engineer from Scotland. However, he took to the stage and rose to success as an actor. On February 10, 1870, he was born Maxwell Town, Scotland, is where he was born. He received his study at Edinburgh and then at the University of Leipzig in Germany. A scene in the Bishop's Candle kitchens open the play. While Soap is cooking on the stove, Bishop's younger sister Persom and maid servant Mary are engaged in conversation. Scene शुरुआत होता है जहाँ पे Bishops की बहन और Bishops की जो नौकरानी है मैरी, वो दोनों सूप तैयार कर रहे हैं। Persom is concerned that her brother went out in the bitter weather. अब वो उसको चिंतित हो रहा है, Persom चिंतित हो रही है कि मेरा भाई जो है बाहर गया और वेदर कुछ अच्छा नहीं है। When she discovered that her brother has gone to see Mary's ailing mother, she exploded with rage at the people who have been bothering him. अब जब उसको पता लगता है कि वह मैरी के माँ के पास गया है तो वो गुस्सा हो जाती है। Because her brother had already sold his estate, furnishing and other belongings to help the poor and needy. Bishop जो है काफी काइंड है, काफी काइंडनेस भरा हुआ है उसके अंदर। वो अपने किसी का मदद के लिए अपना घर का कुछ भी बेच सकता है और बेच दिया है। Persom's rage is justified. Persom is even more taken aback when he learns that Bishop has sold off his
सिल्वर साल्ट सेलर दैट हेल्प अनदर सिक लेडी पे हर रेंट। एक सिल्वर का साल्ट सेलर था, उसको भी वो बेच दिया था, क्योंकि एक बीमार लेडी को उसका घर का रेंट देना था, जिसके कारण बेच दिया था वो। तो मतलब बैसअप जो है ना, हमेशा हेल्प करने के लिए, नीडी पीपल का हेल्प करने के लिए आगे है और हेल्प करते रहता है। द बाइसेप्स arrive quickly and assign Mary to look after her mother. To keep her warm in the cold, he lends her his comforter. You will sell your candlestick next. बाइसेप जो है घर आता है, फिर मैरी की माँ को देखने के बाद अब हुआ जो है ना, आता है घर, तो परसम उसको बताती है कि किसी दिन ना तुम मम्मी का जो है कैंडल स्टिक भी बेच दोगे। द बाइसेप प्रेजेस हर फॉर द सजेशन। बाइसेप जो है उसकी तारीफ करता है कि चलो अच्छा है, तुमने ये सजेशन दे दिया कि कुछ है भी रखा हुआ अभी हमारे घर में जिसको मैं बेच सकता हूँ। However, he admit that the candlestick are his prized possession, a gift from his deceased mother. उसकी मम्मी से दिया हुआ है, जो कि गुजर गई है और उन्होंने ही बाइसेप्स को दिए थे। एंड ही डजंट वांट टू गिव देम अप, और वो जो है उसको देना किसी को नहीं चाहता है। Person departs and the biceps retires to his study to read. It's past midnight now. If prisoners enter the room quickly, seizes the biceps from behind. अब जो है वो अपने रूम में चला जाता है पढ़ने के लिए। इसी बीच अर्धरात्रि का समय था और एक जो कैदी है ना, वो बाइसेप्स के घर में चला जाता है, बाइसेप्स के रूम में चला जाता है और बाइसेप्स को पीछे से पकड़ लेता है एंड डिमांड्स फूड, और भोजन का मांग रखता है। इफ द बाइसेप्स रेजेस एन अलार्म, ही थ्रेटन टू किल हिम। अगर बाइसेप्स जो अलार्म बजाता है तो वो उसको धमकी दिया था कि मैं तुमको मार दूंगा। द बाइसेप अपीयर्स इनफेस्ड by the situation. He addresses the convict as son and begs his sister to bring him food. वो जो है उसको सन के रूप में बताता है और उस बहन को जगाता है और कहता है उसको खाना लाने के लिए। एंड ड्रिंक, पानी। He also cans Persum, who was terrified when he saw the convict dagger in his hand. अब वह जो है परसम को भी शांत करवाता है, क्योंकि परसम जो है उसके हाथ में चाकू वगैरह कुछ देख ली थी, तो वो उसको भी शांत करवाता है। The inmate gorges himself on the meal. The inmate warms up to the Bassam after eating and tells him tragic experience. He informed the Bassam that he used to be a regular guy. He had a wife. अब वो जो है सब खाना पीना हो जाता है तो बैसप्स को वो अपना कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि वह भी एक आम आदमी था, उसके भी एक वाइफ थे, एक घर था, बट हिज वाज अनएम्प्लॉयड, लेकिन रोजगार नहीं था। एज ए रिजल्ट ही चीटेड टू फीड हिज एलिंग वाइफ। तो वो अपने वाइफ को खिलाने के लिए चीट किया या चोरी किया। ही वॉज एप्रीहेंडेड एंड वाज सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन। तो उसको पकड़ लिया गया और उसको 5 साल जेल में डाल दिया गया। ही वॉज सैकल्ड एंड टॉर्चर, उसको परेशान किया गया वायलेंटली। एंड ही वॉज फेड गार्बेज, और उसको मतलब गंदा खाना खिलाया गया। द बाइसेप्स कंसोल हिम एंड ऑफर्स हिम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। बाइसेप्स का सहानुभूति उसके साथ था और उसको बताया कि तुम अगले रात के लिए, आज की रात के लिए मेरे पास रुक जाओ, तुम क्यों बाहर नहीं जाओ, यहीं रह जाओ। Persum discovered the convict and the silver candlestick are missing the next morning. अब परसम को पता लगता है कि जो कैंडल स्टिक था वो मिसिंग है, जो सिल्वर कैंडल स्टिक था उसके घर से मिसिंग है। शी रेजेस एन अलार्म एंड रिपोर्ट द थेफ्ट टू द बैसप। अब वह जो है ये बात उठाती है और बैसप को बताती है कि चोरी हो गया है घर में, और कुछ नहीं, उसकी जो माँ दी थी वो कैंडल स्टिक चुरा लिया है किसी ने। She rages the Bassaps enraged, yet he refuses to call the cops. गुस्सा हो जाता है लेकिन फिर भी वो पुलिस को नहीं बुलाता है। Soon after, Sergeant appears accompanied by 2 soldiers and the chained criminal. जल्द ही वो पकड़ा जाता है और उसके घर लेके चले आते हैं 2 पुलिस वाले थे, 3 पुलिस वाले। उस चोर को, उस अपराधी को उसके घर लेके चले आते हैं Bassaps के घर। The Bassaps inform the cops that the inmate was a friend of his and that he had given him to
ए कैंडल स्टिक। अब वो कहता है, बैशप बोलते हैं कि हमने इस आदमी को गिफ्ट के तौर पे ये कैंडल स्टिक दिया, ये हमारा फ्रेंड है। इस तरह से वो बात को बदल देते हैं। द कॉप्स रिलीज द इनमेट एंड लिव, उसको छोड़ देता है। द इनमेट इज टेकन अबैक बाय सच जनरसिटी, ही प्रॉमिस टू चेंज हिज वेज एंड स्टार्ट अगेन। अब वो वहां पे प्रॉमिस करता है कि वो अपने आप को बदल देगा और अपना जीवन पुनः स्टार्ट शुरू करेगा। द बाइसेप्स ब्लेसेस हिम एंड प्रेजेंट हिम विद द कैंडल स्टिक, उसको ब्लेस करता है और उसको जो है प्रेजेंट कैंडल स्टिक दे देता है। ही रिवील ए बैकडोर टू पेरिस वेयर द इनमेट कैन लिव ए सेफ एंड रिस्पेक्टेड लाइफ। हुआ जो है उसको बताता है कि आप जो है पेरिस चले जाइए और जहाँ पे आपका लाइफ जो है आपको शायद कोई ना पहचाने और एक आप बढ़िया लाइफ, रिस्पेक्टेबल लाइफ वहाँ गुजार सकते हैं। इस तरह से ये कहानी खत्म हो गया। थैंक यू।